Hello students, in this question, it is given that probability of getting at least one head is more than 99% and we need to find the minimum number of times a fair coin. So basically, we have given that probability of at least one head is greater than 99%. So from here we can write as probability of at least one head equal to 1 minus probability of no head, and this equal to greater than 99%. So from here we can write as 1 minus 99 by 100 is greater than probability of no head. So from here we can write as probability of no head is basically less than equal to 1 by 100, and we can write this probability of x equal to 0, where x is probability distribution which is less than 1 by 100, and this is the binomial distribution. Basically binomial distribution is p plus q raised to power n equal to ncr p raised to power r q raised to power n minus r, and here r is basically x, so we can say that r is equal to 0. So from here we can write as nc0 p raised to power 0 q raised to power n minus 0 less than 1 by 100. So from here we can write as nc0 p raised to power 0 basically 1 and q raised to power n basically 1 minus p raised to power n less than 1 by 100, and we know that p is probability of success which equal to 1 by 2. So from here we can write as nc0 1 minus 1 by 2 basically 1 by 2 whole raised to power n less than 1 by 100, and we know that nc0 is basically n factorial divided by n minus 0 factorial multiply 0 factorial. So from here we can get this equals to 1. So from here we can write as 1 by 2 raised to power n is less than 1 by 100. So we can write as 1 by 2 raised to power n less than 1 by 100. This equals to 2 raised to power n is greater than 100. Now we have to put n value such that this condition is satisfied. So basically when we put n equal to 7 here, this equals to 128 is greater than 100. So from here this condition is satisfied. So we can say that n equal to 7, 8, 9, 10 to infinity, and minimum value of this and minimum value is basically n equal to 7. So this is our answer. Thank you. Hello students, the question is the minimum number of times one has a toss a fair coin so that the probability of observing at least one head is at least 90% is what? So options are given. We have to find which option is correct. So the probability P equal to 1 by 2. So and Q equal to 1 by 2. So I take a number of toss. It will be n. So the probability of at least one head, it means of p of x equal to 1 minus p of all tail. So this I taken probability of at least one head. So now 1 minus the p is value of 1 by 2, then 1 by 2 whole power n. So now according to the question is 1 minus 1 by 2 whole power n is greater than equal to is given in 90% is given. So I'll take a 90 divided by 100. So now it will becomes 1 minus 90 by 100 greater than equal to 1 divided by 2 whole power n. So now we can write 10 divided by 100 greater than equal to 1 divided by 2 whole power n. So the 0 and 0 is cancelled. It will become 1 divided by 10 greater than equal to 1 divided by 2 whole power n. So the answer is
2 power n greater than 10. So it will be comes from 2 power 3 which is equal to 8 and 2 power 4 which is equal to 16. So the answer is n minimum value equal to 4. So the n greater than equal to 4. So this is the answer, students. We see the option. So option D is the correct answer. Thank you so much, students. Hello everyone. So the question is, in a game, a man wins 100 rupees. Okay. If he gets 5 or 6 on a throw of a fair die and loses 50 rupees for getting any other number on the die. That means 5 or 6 come, then he will win 100 rupees. And if it is not 5 or 6, then he has to face loss of 50 rupees. Okay. If he decides to throw a die either till he gets 5 or 6 or to a maximum of 3 throws, then his expected gain or loss. So we need to find expected outcome of this game in terms of gain and loss. So what is expected outcome? So basically expected outcome is some of the all scenarios or all the cases where he has to face loss or he has to face gain. Okay. So for that, first of all, we have a die. So on a die, there are 6 digits, that is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. If 5 or 6 is coming, then he has to face gain of 100 rupees. So first we need to find probability of getting 5. So probability of getting 5 out of 6 digits is 1 by 6. And similarly, probability of getting 6 out of these 6 digits is also 1 by 6. And we know that probability of succeed plus probability of failure, that is equals to 1. Okay, so probability of failure will be equal to 1 minus probability of success. Now let's find probability of success, that is PS, is equals to, and that will be probability of getting 5 plus probability of getting 6, and that is 1 by 6 plus 1 by 6, that is 2 by 6, and that is 1 by 3. Now from there probability of failure we get 1 minus 1 by 3, that is 1 minus probability of success, and that is equals to 2 by 3. Now we need to find expected outcome in terms of gain and loss. So expected outcome will be, so he has to face loss of 50 rupees when the die shows other than 5 or 6. So probability of getting 5 or 6 on a die is probability of success. So probability of success, and if he succeed, then he has to face gain of 100 rupees. That means PS multiply by plus 100. And if the die shows other than 5 or 6, that is probability of failure, then he has to face the loss of 50 rupees. Okay, so that will be loss of 50 rupees, that is minus 50. So expected outcome means we need to find the sum of all the scenarios or all the cases where he has to face loss or he has to face gain. Okay, now that will be PS is 1 by 3 multiply by 100 plus PS is 2 by 3 multiply by minus 50. So that is 100 by 3 minus 50 multiplied by 2, that is also 100 by 3. So that is equals to 0. So expected outcome is equals to 0. That means neither he has to face loss nor he has to face gain. So now let's check the option. So we have option C here equals to 0. That is the correct one. Thank you. हेलो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय अ शूटर इन एनी शॉट इज, कितना है प्रोबेबिलिटी कि वो शूट करेगा 1/3, देन द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट शॉट्स एट द टारगेट रिक्वायर्ड बाय हिम सो डैट, तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ से इंडिपेंडेंट शॉट्स लगाने, मतलब कितने नंबर बार उसे टारगेट पे शूट करना होगा ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द
टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 5/6 हो, ताकि प्रोबेबिलिटी कि टारगेट एटलीस्ट एक बार हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, ग्रेटर देन 5/6 है, 6 हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट क्या है, 1/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट क्या हो जाएगा, 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर कोई भी वो शूट करेगा तो दो ही चीज़ हो सकता है, दो ही आउटकम्स हो सकता है, क्या कि या तो फिर वो टारगेट को हिट करे या फिर ना हिट करे। तो इसलिए दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1। तो 1/3 हिटिंग का है तो 2/3 क्या हो जाएगा, नॉट हिटिंग का। अब क्या कर रहे हैं कि लेट द मिनिमम नंबर ऑफ शॉट्स रिक्वायर्ड बी x। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जो शॉट रिक्वायर्ड है वो क्या है, x है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अब यहाँ पे देखें अगर कि जितनी बार भी शॉट टारगेट को शूट कर रहा है, ठीक है, तो हर बार हर शॉट क्या है, एक दूसरे से, पहला शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, हर शॉट एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ इंडिपेंडेंट शॉट। मतलब इंडिपेंडेंट शॉट का मतलब ये हुआ कि पहले शॉट का जो प्रोबेबिलिटी होगा और दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, और दूसरे का तीसरे पर नहीं डिपेंड करेगा, मतलब एक दूसरे पे सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। प्लस हर जो शूट कर रहा है हर बार, उसका जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, वो कांस्टेंट है। मतलब हिटिंग द टारगेट 1/3 होगा और नॉट हिटिंग द टारगेट क्या होगा, 2/3 होगा। वो फर्स्ट टाइम शूट करे या फिर सेकेंड टाइम करे, थर्ड टाइम करे या nth टाइम करे, किसी भी टाइम करेगा, वो हिटिंग द टारगेट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, नॉट हिटिंग द टारगेट 2/3 है। और दोनों का सम क्या है, और दो ही आउटकम है, हिटिंग द टारगेट, नॉट हिटिंग द टारगेट। तो हम आराम से इसमें क्या लगाते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखें हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1, हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। ठीक है, ये इसको कैसे निकाल सकते हैं कि 1 माइनस कर दे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग ऑल द टारगेट। ठीक है, यानी कि एक बार भी 1 माइनस मिसिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग ऑल द टारगेट है, एक बार भी निशाना नहीं लगेगा उसका प्रोबेबिलिटी। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो इसका हम देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग ऑल द टारगेट कितन, तो क्या हो जाएगा, वो x बार शूट कर रहा है। ठीक है, मिनिमम शॉट्स लिखे क्या है, एक बार x बार ले रहा है, तो x सब टारगेट मिस कर रहा है, यानी कि सारा टारगेट को क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x 2/3, क्योंकि मिसिंग का क्या, नॉट हिटिंग द टारगेट क्या है, प्रोबेबिलिटी 2/3 है, का पावर x इंटू 1/3, हिटिंग का क्या है, 0, एक बार भी हिट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का क्या है, 1/3 इंटू 2/3 का पावर x, 1/3 का पावर 0 है कि 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3x, 2/3 का पावर x हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, और हमको एटलीस्ट वंस क्या चाहिए, इज ग्रेटर देन 5/6 चाहिए। ठीक है, तो ये जो होगा वैल्यू क्या चाहिए हमको, ग्रेटर देन 5/6 चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द टारगेट क्या है, 2/3 का पावर x है, ये क्या चाहिए, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू, केवल ग्रेटर देन क्या चाहिए, 5/6। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2/3 का पावर x, और क्या लिख सकते हैं कि 1/6 ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2/3 का पावर x। हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग दोनों साइड लेते हैं तो क्या होगा, लॉग 1/6 क्या होता है, ग्रेटर देन होगा लॉग 2/3 का पावर x। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस लॉग 6, लॉग 1 माइनस लॉग 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर देन होगा क्या है, x, log 2 माइनस log 3। ठीक है, तो हम ऐसे
तो ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 6। ओके, हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 3। अब देखिए log 2 माइनस log 3 क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये log 1 का वैल्यू क्या है, 0। ये log 6 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2 प्लस log 3, ठीक है। log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3, 3 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो माइनस साइन लगा तो क्या हो जाएगा, माइनस log 2 माइनस log 3 बाई log 2 माइनस log 3, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3 डिवाइड बाई यहाँ से माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 2। ये क्या होना चाहिए, लेस देन x होना चाहिए। इसका वैल्यू से सॉल्व करेंगे अगर तो वैल्यू क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो विच इज लेस देन x होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 5। तो x इक्वल टू 5 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, एक बॉक्स है जिसमें 15 ग्रीन बॉल्स है एंड 10 येलो बॉल्स है, ठीक है। तो 10 बॉल रेंडमली हम चूज करेंगे 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, देन वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन इज, ठीक है। तो ग्रीन बॉल आने का वेरिएंस होता है एन पी इंटू क्यू। एन क्या है, कितने नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहे हो आप, ठीक है, एंड पी उस बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी एंड उस बॉल के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम यदि ग्रीन बॉल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी वो क्या होगी, ग्रीन बॉल है 15 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 25, तो आ जाएगा 3/5। एंड क्यू उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस पी यानी कि 3/5, ये आ जाएगा 2/5। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा नंबर ऑफ कितने टाइम्स निकाल रहे हैं हम 1 बाई 1 10 टाइम्स, एन और पी क्या है 3/5 इंटू क्यू क्या है 2/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, v इज इक्वल टू आ गया ये 2 टाइम्स 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 है डिवाइडेड बाई 5, ये इसका वेरिएंस आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, इजी। Hello friends, we have a question here. 100 identical coin each with probability P of showing head are tossed 1. If P is between 0 to 1 and the probability of head showing on 50 coin is equal to that of head showing on 51 coin, then find the value of P here. So we have to find the value of P, as we know that when we toss a coin, so there will be it head or tail, right? And here we have total 100 identical coins, in which some of the cases where the head will come and in which some of the cases where tails will come. But as we have two outcomes, that as we know that there will be only possibility of head and tail, so here for the two outcome we use binomial distribution. So in binomial distribution, P of R equal to NCR P to the power R into 1 minus P to the power N minus R, right? Where P is the probability of success, P is the probability of success, and 1 minus P is the probability failure, and N is the total number of trial. Here total number of trial we have is 100. So as we have given the probability of head, the probability of success will be equal to probability of head. This is equal to probability of head in 100 coins, right? Now the given is 100 C50 P to the power 50 into 1 minus P
to the power 50 equal to 100C51 P to the power 51 into 1 minus P to the power 49. This is given to us, so we will solve this. This will comes as 100 factorial divided by 50 factorial into 50 factorial. This will come right as P to the power 50 in left hand side and right hand side P to the power 51. So P to the power 50 will cancel out. So this is equal, here we will have P to the power 1, and in the here we have in right hand side 1 minus P to the power 49, in left hand side 1 minus P to the power 50. So the remaining is 1 by P, and in right hand side we will write 100 factorial divided by 51 factorial into 49 factorial. Right, this we will solve. This 100 factorial and 100 factorial will cancel out, so we will have 1 minus P upon P. This 50 we will take this side, 50 factorial into 50 factorial divided by 49 factorial into 51 factorial. So this 50 factorial and this 50 factorial we can write 50 into 49 factorial, and this we will write 49 factorial, and this 51 we can write 51 into 50 factorial. So here this 50 factorial will cancel out, 49 factorial will cancel out. This is equal to 50 divided by 51. So we will cross multiplication. This is 51 minus 51p, 50p, that is equal to 51 equal to 101p. Here my p value is come 51 by 101. So we found our p. Thank you. हेलो, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक फेयर कॉइन को नीडेड टू बी टॉस, कितनी बार एक कॉइन को हम टॉस करें कि सो डैट कि जो प्रोबेबिलिटी मिल हो ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड इज एटलीस्ट 0.96 की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 2 हेड आए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.96 हो जाए. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेट कर रहे हैं, लेट द मिनिमम नंबर ऑफ टॉस्ट रिक्वायर्ड. ठीक है, कितना बार रिक्वायर्ड होगा, बी एक्स से मान लो. ठीक है, तो हमको क्या करना है, एटलीस्ट 2 हेड लाना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, एटलीस्ट 2 हेड क्या होगा, हम क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड. ठीक है, तो हमको मिल जाएगा क्या कि कम प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट हमें 2 हेड मिले, 2 या 2 से ज़्यादा हेड मिले. इसका क्या होगा कि टोटल मतलब क्या 1 में से, क्योंकि एक भी हेड ना मिले, 1 हेड मिले, 2 हेड मिले या पूरा हेड मिले, इस सारे का सम करेंगे तो क्या होगा 1 होगा. तो 1 में से माइनस कर देंगे कि कोई हेड ना मिले प्लस एक हेड मिले. ठीक है, तो हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की एक भी हेड ना मिले. तो हम पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी की गेटिंग नो हेड. एक भी हेड नहीं मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, हम कितना बार टॉस कर रहे हैं, एक बार, x बार. तो x सी हम एक बार भी ना मिले यानी कि 0. तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2. तो 1/2 का पावर 0 इंटू टेल आएगा तब कितना बार, x बार. तो 1/2 का पावर x हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, x C0 1/2 का पावर x. सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड
कितना बार टॉस किए हैं, x बार। हमको कितना बार हेड चाहिए, एक बार। तो हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। और नहीं मतलब टेल नहीं आने का तो x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, xc1 1/2 का पावर x। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। ये क्या क्वेश्चन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.96 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0.96 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो हमको क्या चाहिए कि इसका वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96 चाहिए हमें। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 1 - xc0 1/2 का पावर x माइनस xc1 1/2 का पावर x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.96 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को हम क्या किए, इस इक्वेशन में पुट किए। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1 माइनस माइनस है 0.96, सीधा रहेगा तो क्या हो जाएगा 0.04। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए x0 प्लस xc1 1/2 का पावर x। ठीक है, तो इसको हम क्या 0.04 को क्या लिख सकते हैं, 4/100। ओके, ये x0 का क्या वैल्यू 1, तो 1/2 का पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1/2 का पावर x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/100। ये ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए किसके, x + 1 डिवाइड बाई 2 का पावर x। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हम इधर मल्टीप्लाई ये करते हैं, ये 4 को ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि 2 टू द पावर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये x + 1 भी क्या है, पॉजिटिव है। तो 2 टू द पावर x क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, 25 टाइम्स x + 1 से। ठीक है, अब हम x का वैल्यू देखते हैं क्या हो सकता है। अगर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 इंटू 25 यानी 50। तो ये 50 और ये 2 टू पावर x बहुत छोटा है, ये क्या हो छोटा ही है, लेकिन 50 यहाँ पे x = 1 पुट करने पे आ रहा है। तो यानी कि 2 टू पावर 5 क्या होता है 32, यानी 2 टू पावर 6 पुट करेंगे। तो x = 6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो x = क्या करें 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7, 7 इंटू 25 क्या हो जाएगा 175। और 2 टू द पावर 7 क्या होता है, यहाँ पे अगर हम x = 6 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 टू द पावर 6 क्या होता है 64। तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो x = हम क्या पुट कर रहे हैं 7, तो 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 175। 2 टू द पावर 7 क्या होता है 120, ये भी नहीं होगा, 175 ऑलरेडी है तो 2 टू द पावर 7 ऐसे होगा भी नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो x = हम क्या करते हैं 8, तो 8 करते हैं तो 2 टू द पावर 8 क्या होगा 256 क्या होगा 256। तो ये क्या है, और ये x = 8 पुट करेंगे तो ये 200 आ रहा है, तो ये ग्रेटर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि x का वैल्यू क्या आना चाहिए 8। तो ये क्या होगा मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।